So as we were doing the chapter, longitudes and latitudes. So let's move on with the chapter with the introduction portion. So that is that we all know that the shape of the earth is it's resembles like an orange. है ना, और जो हमारी अर्थ it resembles like an orange. Orange जैसी shape है, जो साइड से है, जो साइड से जो shape है, that is bulges out, and ऊपर से it is flattened. It is flattened from both the sides of the upper side and the lower side. ठीक है, वहां से वो फ्लैट है एंड साइड से वो बल्जेस है. इट्स सेम लाइक दैट वी आर लुकिंग एट इन ऑरेंज. फाइन. एंड इसके लिए हम इसलिए हमने अर्थ के लिए एक डिफरेंट से एक नेम जो है वी यूज द नेम कॉल्ड जियोइड. तो जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब होता है अर्थ शेप्ड. सो व्हाट डू वी मीन बाय जियोइड? Geoid is earth shaped, जिसमें we have a diameter and circumference. Last time I have told you what do we mean circumference. Circumference is the area of a circle. Circumference means the area of the circle, and there's a diameter, that is your equator. Okay, so equator works as your diameter. ओके. एंड अर्थ जो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, अर्थ का एक्सिस है वो उसके एक्सिस अपने एक्सिस पे अपनी जगह पे ऐसे से रोटेट करेगी. ठीक है, ऐसे करके अपने एक्सिस पे से रोटेट करती रहेगी. सो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. फाइन. एंड जो उसके जो दो पोल्स हैं, जो हमारे सपोज दिस इज माय फोन, so this is like it is having two poles, like earth is treated like this pole and this pole is earth. They are two poles, so north pole and south pole, and these are also known as the pole stars or the poles. ठीक है, so इनको हम poles को हम इनको क्या बोलते हैं? We also call it as pole stars or poles. ठीक है, so the pole which is at the north, it is known as north pole. The pole which is at the south, that is known as the south pole. Is that fine? Moving on. See, up. Listen. See, this is the this is the picture of Earth. We all can see the picture of the Earth over here. So the major thing is these are the continents. The land masses we are seeing, these are the continents, and continents are the land masses. Okay, surrounded by the water body, and 29% is our land mass, that is our continents covered by the land, and 71% is our ocean, the water body. Okay, this is a kind of general knowledge thing which I am describing over here. Then globe, the model of the earth. So as I have mentioned already, globe is a model of a earth. Globe resemble the earth. Globe earth की तरह दिखता है. See, इसके ये अपनी एक्सिस पे घूम सकता है. ये इसके दो एक्सिस हैं. ये एक्सिस है इसका जिसके ऊपर अर्थ ग्लोब घूमेगा. दिस इज द ग्लोब, सेम लाइक अर्थ. इस पे देखो कॉन्टिनेंट्स हैं. बट द प्रॉब्लम, इसकी भी स्फेरिकल शेप है, इसकी भी जियोइड शेप उन्होंने दिखाई हुई है. ठीक है, ऊपर से इसका भी फ्लैट सरफेस दिखाया है, साइड से बल्जेस आउट दिखाया हुआ है इसका शेप. ठीक है, सो इट इज सेम लाइक आवर अर्थ. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? So the problem is the shape of the earth is same like gold, like the earth, like the globe. But the problem is कि जो हमारा जो globe है, it is not having the that specific shape जिसपे हमें सारी states वगैरह सब कुछ दिख पाए. ठीक है, हमें जो है वहाँ पे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में हमें सारी शेप्स नहीं दिखती, हमें सब कुछ नहीं दिखाई देता उसमें. ठीक है, अब हम अगर उस पर एशिया कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो एशिया में हमें आप इंडिया देखेगा, अगर हमें इंडिया मिल भी जाता है, तो इंडिया में क्या हम अपना पंजाब ढूंढ सकते हैं? वी कैन नॉट. सो दैट्स द रीजन वी कैन नॉट that's the reason we criticize globe as a model of earth, because हम उस मॉडल को यहाँ से वहाँ कैरी नहीं कर सकते हैं. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. हम उस पर हर एक चीज़ क्लियरली देख नहीं सकते, उसके प्रॉपर हमें शेप नहीं दिख पाती, हमें प्रॉपर उसका एरिया पता नहीं चल पाता. ठीक है, डिस्टेंस का हमें पता नहीं चल पाता. दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, दीज आर सम प्रॉब्लम विद द ग्लोब. ओके, then secondly, moving on. So we have done with the model of the earth. So nextly we have the latitudes. Okay, so before going to latitudes, we have locating place on a globe. So on a globe we cannot place the all the places, we cannot locate all the places. So इसलिए जो है imaginary lines की formation हुई है. So imaginary lines are latitude as well as longitudes.
सो द आवर इमेजिनरी लाइंस आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इमेजिनरी लाइंस जो हमारी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो वो प्लेस कहाँ पे है और कौन से डिग्रीज पे है, एंड वी कैन लोकेटेड बाय द डिग्रीज. ठीक है. जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, सी दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, ये जो इनको बोलते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल लैटिट्यूड्स और पैरेलल लाइंस. ये क्या है, ये है हमारी लैटिट्यूड्स. जो हमारी जो लाइंस ऊपर से लेके नीचे को आती है, ये जो हमारे ग्लोब में आप देख सकते हो, जो ऊपर से लेके नीचे को आती है, हम उनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है. इसमें जो है आपका एक इक्वेटर है जो डिवाइड करता है टू स्फेयर्स में. ठीक है. इक्वेटर जो है आपका, यहाँ से जो इक्वेटर है आपको डिवाइड कर रहा है, जिसको हम डायमीटर भी कहते हैं, ये जो इक्वेटर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो डिवाइड किस दो पोर्शंस में कर रहा है. इट इज डिवाइडिंग इन द टू पोर्शन, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है. सो हेमिस्फीयर इज व्हाट डू वी मीन बाय हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर. हेमिस्फीयर मींस हाफ स्फीयर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आधा, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा. तो दिस इज हाफ स्फीयर. हेमिस्फीयर इज आल्सो नोन एज हाफ स्फीयर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज अवर लॉन्गिट्यूड. जो है लॉन्गिट्यूड है जो हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे को मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है. सो इसमें आपकी एक जो लाइन है जो आपकी डिवाइड करती है, दैट इज प्राइम मेरिडियन. विच लाइन डिवाइड्स, दैट इज प्राइम मेरिडियन. So prime meridian divides the earth into two equal halves, that is eastern hemisphere and the western hemisphere. Okay, that also divides the earth on the two equal part, that is eastern hemisphere and the western hemisphere. Okay, so I will stop here. Tomorrow we will move ahead with the latitude portion. So thank you so much.